Good morning, 10th class. How are you all? How are your studies going on? पढ़ाई अच्छे से चल रही है सब बच्चों की? Okay, I hope you all are studying. Coming back to our chapter, still we are going with our history lesson. It's very important chapter, children. 2 ही लेसन आ रहे हैं हिस्ट्री में से एंड 20 मार्क्स हैं, तो ये 10 मार्क्स का लेसन है. So we were doing nationalism in Europe, making of nation states, empire की breaking up and making of nation states. So we will see now the making of Germany and Italy. In the last class, last 2 classes, जो हमने last chapter समझा था, revolutions, then we have read about Frankfurt Parliament, how Frankfurt Parliament failed. It was the first attempt to unify Germany, but it failed. Then the fight of women for political rights. They were denied political rights. No right to vote was given to women. ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. And how the autocratic monarchs, they have started realizing कि अब ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल नहीं किया जा सकता. पीपल वॉन्ट चेंज, थोड़ी सी लिबर्टी चाहिए. सो दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सम रिफॉर्म्स इन द एरियाज. दिस वॉज आवर लास्ट 2 क्लासेस. नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर 4th यूनिट ऑफ द लेसन, द मेकिंग ऑफ इटली एंड जर्मनी. ये स्टार्ट करेंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूनिफिकेशन, how Italy was unified and how Germany was Italified. In the beginning of the lesson, we have read that there was no German nation. आज जो Germany country, which is a very powerful country of course, लेकिन उस समय 1848 से पहले 1848 तक there was no Germany. Only German speaking areas, German language थी, और वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो एरियाज़ थे वो अलग अलग एम्पायर्स का पार्ट थे. हैब्सबर्ग एम्पायर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, वहाँ हमने पढ़ा था. सो दैट वाज जर्मन स्पीकिंग एरियाज़. सो फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कि वो सारे जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को फ्री कराकर और एक जर्मन नेशन बनाया जाए. दैट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट बट इट फेल्ड. The most powerful German speaking area or the territory was Prussia. Prussia एक एरिया था जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी और ये सबसे पावरफुल था. So now we are going to read how Germany became a nation, how it was unified. Germany, can the army be the architect of a nation? What is the meaning of architect, children? बनाने वाला. तो here we'll see how the army became the architect of nation. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Much changes were coming into political system. 1848 तक nationalism का मतलब था democracy, freedom for the people. लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है. नाउ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड. मोबिलाइज्ड मीन्स यूज्ड बाय द लीडर्स, बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. देखो, लोगों में देशभक्ति की भावना की कमी नहीं थी. दे वर नेशनलिस्ट, दे वांटेड, है ना, वो देशभक्ति वो था उनमें. दे वांटेड देयर नेशंस. तो अभी तक तो सब सही चल रहा था. 1848 तक तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, गुड लीडर्स. लेकिन अब धीरे धीरे ये जो लीडर्स हैं ये इस देशभक्ति की भावना का फ़ायदा उठाने लगे. लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, धीरे धीरे ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. किस लिए? अपने आप को प्रमोट करने के लिए. थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से, बट दिस वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम. वो अपनी लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब लोगों में ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है इसका फ़ायदा उठाने लगे.
दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, और ये चीज़ देखो बेस्ट एग्जाम्पल है in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. So now we are going to see how Germany and Italy were unified as a country. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. Middle class हमेशा अपने देश से प्यार करता है. हाँ, ये तब भी ट्रू था, आज भी ट्रू है. So people were quite nationalist. They were ready to do anything for their country. Who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. ये कोशिश हमने पढ़ी थी, जिन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन के एक नेशन स्टेट में लाने की कोशिश करी थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दैट वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो उनकी कोशिश थी टू नेशन बिल्डिंग, वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड, इसे दबा दिया गया था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री. ये पढ़ा था हमने, हाउ मोनार्क्स सेंट द आर्मी टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, टू द चर्च ऑफ सेंट पॉल, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स दे हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ दैट चर्च. These monarchs and military was supported by the large land owners. जर्मनी में लैंड ओनर्स को क्या कहते हैं? बंकर्स. इन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी आ जाती तो इनका पावर भी खत्म हो जाता. ऑफ प्रशिया, द मोस्ट पावरफुल जर्मन स्टेट. फ्रॉम देन ऑन, दो दैट अटेम्प्ट फेल्ड, 1848, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. लेकिन अब प्रशिया के दिमाग में ये बात आ गई टू यूनिफाई जर्मनी. प्रशिया इज़ अ स्मॉल स्टेट, हाँ, अपने आप में एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन अगर जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ को सारे एम्पायर्स से, जिन भी एम्पायर्स के अंडर में थे, हैब्सबर्ग के अंडर में थे, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, वहाँ से फ्री करके अगर प्रशिया के साथ मिला दिया जाए तो इट वुड बी अ वेरी बिग कंट्री. यही तो है अब लीडर्स को, to become the leader of big countries. So now leadership was taken by Prussia. Prussia took on the leadership of the movement for national unification. Responsibility was taken by Prussia that we will unite. Underline karo, its chief minister Otto von Bismarck. He is known as the Iron Man there. अकेले ने इनकी पूरी कोशिश से Germany was unified. He was the chief minister of Prussia, not king, chief minister of Prussia, was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. Bureaucracy means वहाँ के जो government servants थे, government officials थे, उनकी help से ये सारा process carry out किया गया. The leader is Otto von Bismarck. Army is helping him because he is the chief minister of the state, and the government officials, they all are helping him. He carried out the unification of Germany. कैसे हुआ? 3 wars over 7 years. 3 empires के साथ वॉर लड़े. कौन कौन था? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ. इनके अंडर में थे जर्मन स्पीकिंग एरियाज. इनके साथ वॉर हुए. 3 wars, it took 7 years, ended in Prussian victory. तीनों में प्रशिया victorious रहा and completed the process of unification. So it took 7 years and 3 wars to complete this process. In January 1871, the Prussian king, change हो गया था king, अब कौन हो गया? William I, was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. So 7 years पूरा process हुआ, wars हुए, और January 1871 में with the Prussian king William I being declared as the king of unified Germany, he became the king. और पैलेस ऑफ वर्सलीज में एक बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई. सी व्हाट हैपेंड देयर. ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18th January, डेट अंडरलाइन कर लो, दैट इज द डेट जर्मनी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ कंट्री. 18th January 1871. कितनी ठंड होती है
है ना, जनवरी में. एन असेंबली कंप्राइजिंग, कौन कौन था देखो वहाँ, द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, वो सारे जर्मन एरियाज जो फ्री कराए गए थे वहाँ के प्रिंस, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck. They all collected in the unheated Hall of Mirrors, a beautiful hall in the palace of Versailles, Hall of Mirrors. वहाँ पर ये सब collect हुए to proclaim the new German Empire, to declare new German Empire. एक है ना, German as a country, Germany as a country was declared there in the palace of Versailles to proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. Underline करो ये, he became the first king of Germany. Prussia के king थे उस समय Kaiser William I. He was declared as the king of Germany. So Germany was unified by Otto von Bismarck. 3 countries के साथ war हुए, Austria, Denmark and France. It took 7 years, but with the help of strong Prussian army, Bismarck was able to defeat all these 3 countries. उनके अंडर में जो German speaking areas थे उन्हें free करवाया, and one unified Germany was declared as one country on 18th January 1871 with Kaiser William I, the king of Prussia. He was declared as the king. So this day on 18th January, a new nation came into force, that was Germany. Now the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. लेकिन ये जो सारा प्रोसेस हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, किसने किया था? लीडिंग स्टेट कौन सा था? प्रशिया. आइडिया, सारी मेहनत किसकी थी? ओटो वॉन बिस्मार्क, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. आर्मी कहाँ की थी? प्रशिया की. ब्यूरोक्रेसी कहाँ की थी? प्रशिया की. तो देखा जाए तो जर्मन यूनिफिकेशन बाकी जर्मन स्पीकिंग एरियाज ने हेल्प नहीं करी ज़्यादा. टोटल जो काम कैरी आउट किया दैट वॉज डन बाय प्रशिया. सो जो टोटल पावर यूज हुआ था तो दैट वॉज प्रशियन पावर. सो एवरीथिंग दैट वॉज प्रशियन, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट. सो द न्यू स्टेट, जो नया कंट्री बना है अभी बाय द नेम जर्मनी, द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी. अभी अलग अलग जर्मन स्पीकिंग एरियाज में करेंसी अलग अलग थी सबकी, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंडर में थे. नाउ दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ प्रशिया, जर्मनी. सो जो प्रशिया की करेंसी थी, अ न्यू करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर. न्यू बैंकिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, सारा ही बना भाई, को एक नया देश बना है और देश को हर चीज़ की ज़रूरत होती है. तो वो सब जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया गया जर्मनी में, वो कहाँ का इम्प्लीमेंट हुआ? प्रशिया का, क्योंकि सारी मेहनत कौन से कंट्री ने करी थी? प्रशिया ने. सो द करेंसी, द बैंकिंग सिस्टम, द लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, एवरीथिंग वॉज फ्रॉम प्रशिया. Prussian measures and practices often became a model for the rest of Germany. तो ये सारा जो कुछ भी कैरी आउट हुआ जर्मनी में, इम्प्लीमेंट हुआ, वो कहाँ का हुआ? प्रशिया का सब कुछ. तो दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अ न्यू नेशन स्टेट वॉज मेड. दिस इज हाउ जर्मनी वॉज यूनिफाइड. ठीक है बच्चों, तो ये आप स्टेप्स में पॉइंट्स लिख लेना, हाउ जर्मनी वॉज यूनिफाइड. एक बात बताओ 10th क्लास, आप सबने एडवाइज़र ली है 10th की एडवाइज़र सोशल साइंस की? ऑल दीज आंसर्स आर वेरी नाइसली गिवन इन दैट एडवाइज़र. तो आप वहाँ चेक करो, एडवाइज़र में आपको ये सब मिल जाएगा. ठीक है, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज़ गिवन इन पॉइंट्स देयर, तो टेक दीज पॉइंट्स फ्रॉम देयर. सो आज के लिए इतना ही. टिल देन कीप रीडिंग.